Welcome back. We had started off with the chapter directing, and in the last class, I had completed till the barriers to communication, under which I had done the very first, that is semantic barrier. And as the name suggests, semantic matlab something which is related to language. Yani ki there might be symbols with different meanings, or you may be addressing an audience जिसका लेवल आपके जैसा ना हो. Faulty translations, technical jargons, body language and gesture. Now we are moving towards the psychological barriers. I would request everyone that while you are understanding the concept of psychological and personal, there is a hairline difference between both of them. So, and this is where, or normally often it happens, ki mistakes takes place. Just be careful. When it comes to psychological, now psychology is something related to our mind, and psychology is not जिसको आप सोचो कि somebody is psycho. We use it in the wrong format. Psychological means certain emotional factors. Understand that when there are certain emotional factors. Now, for example, if I'm not, I'll give you one simple example today. I was bit, what you call, disturbed. And I was speaking to my mom. And what happened is I missed my class. One of the class which I had to take at 1:15, I missed it. The reason, I was disturbed. And this is where psychological barrier comes. If a person is worried, if a person is worried, if a person is angry, then may not, or maybe that the person isn't able to communicate or even receive it. तभी हम लोग कई बार ना एक वर्ड यूज करते हैं concentration, because the state of the mind of both sender and receiver reflects in the effective communication. होता है, सबके साथ होता है. इट इज नॉट विद, मतलब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आप किसी वजह से परेशान हो, then you may not be able to understand or even give back what you wanted to. The very first is, these are the one which may come. Premature evaluation. Matlab, sometimes people evaluate the meaning of message before the sender completes his message. Such premature evaluation may be due to preconceived notions or prejudices against the communication. अरे छोड़ो, इसने क्या बोलना है. I'm giving you, okay, मेरा boss in the organizational, मेरा बॉस, उसने कुछ नहीं बोलना, उसने एक्स्ट्रा काम ही बोलना, छोड़ो. मतलब हमने जो है प्री मैच्योर, उसने अभी पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है. जो पेपर के अंदर आना है उसमें आपको लेना है कि अभी उसने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है. मींस टुमारो इन द इवनिंग एंड यू हैव कंसीव्ड इट. आपने अपने दिमाग में लगा लिया, हाँ तो कल शाम को इसने दोबारा से मीटिंग रखी है. And you have not heard what the person was completing. आपने इवेल्यूशन पहले लगा के आपने अपने दिमाग में लगा लिया, आपने सुना ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात थी. साइकोलॉजिकल मीन समथिंग विच वॉज देयर इन योर माइंड. लैक ऑफ अटेंशन.
Means that may be because of your personal problems, that may be because of certain other things. The preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of message acts as major psychological barrier. For example, an employee explains about his problems to the boss, who is preoccupied with an important file before him. The boss does not grasp the message and the employee is disappointed. और बड़ा ही common है ये lack of attention, बहुत ही ज़्यादा common, बहुत ही ज़्यादा. मतलब मैंने तो not in my what you call as I can't for this I would never say my boss was मतलब मेरी जो administration, she was very happy with me. I never explained my personal problems to them. वो तो कभी होता ही नहीं था. But yes, I have seen such things. हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं और उसका दिमाग अपनी ही चीज में लगा होता है. Like फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. आप किसी बच्चे के पास गए, बच्चा मोबाइल में खेल रहा है, आप उसको पूछ रहे हो भाई मम्मी का, मम्मी का. अब वो आपको कहाँ जवाब देगा, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने मोबाइल में था. ये एक इसका एग्जाम्पल है. दिस इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल, सो कीप इट इन दिस की लैक ऑफ अटेंशन. मतलब उस बच्चे ने आप पर अटेंशन नहीं दिया. एंड दिस कैन बी वाइज वर्सा. आप ये इसको ऐसा मत लेना कि बॉस ही नहीं देगा, उल्टा भी हो सकता है कि बॉस इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में उससे पूछ रहा है और वो जो एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर सोच रहा है. बॉस बता रहा है कि भाई दिस वर्क हैज टू बी डन दिस में, मतलब आपका ये टारगेट, ये टाइम है, और वो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो सोच रहा है. तो ही हैज नॉट पेड अटेंशन and he did not complete the work on time. Loss by transmission and poor retention. किसी किसी की जो आपको पता है ना, कहते हैं ना बादाम नहीं खाते, मीन्स दे डोंट रिटेन इट. कमरे से बाहर निकले भूल गए, उस वक्त तो समझ आ गया, लेकिन कमरे से बाहर आए, बॉस ने क्या बोला था. When communication passes through various levels, successive transmissions of message results in loss of or transmission of inaccurate information. This is more in case of oral. And poor retention means usually people cannot retain the information for a long time if they are inattentive or not interested. आपने क्या बोला था उनको समझ ही नहीं आएगा, because they have not retained it in their mind. उस वक्त में तो यस यस करके हिला लिया, बाहर आने के बाद ध्यान नहीं रहा क्या हुआ था भाई. And sometimes it is also poor memory loss. It's not only because of the interest, it is also because of the poor memory loss. There are people, मैं यहाँ पर गजनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी. आई मीन टू से देयर आर पीपल हु विल नॉट बी एबल टू रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम. दैट इज व्हाई इन द कंपनीज वी हैव अ रिटर्न कम्युनिकेशन. आजकल तो कैलेंडर्स हैं, पहले तो हम लोगों क्या होता था, टू डू लिस्ट. आजकल तो वी हैव द कैलेंडर्स व्हिच कैन बी ऑटो सिंक्रोनाइज so that no message is lost. Distrust means when both the parties don't believe in each other. 36 का आंकड़ा है. They cannot understand each other's message in the original sense. I'll tell you this one example. अभी ही मैं बात कर रही थी, मतलब एक इंसिडेंट हुआ अभी recently somewhere, and it was about an elder brother and younger brother. They are known to us. What happened is, younger brother थोड़े मतलब कि वो होता है ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी उन्होंने, and he is now owning a very good business. अब तो काफी अच्छा उनका बिजनेस है, मतलब बहुत एक मतलब कहते हैं ना वेल्दी. एंड जो एल्डर ब्रदर है, he is educated and of course he is also as rich as his younger brother. Both of them are very well to do.
दोनों का इधर रामपुरी में मकान है, मम्मी के घर के पास में। तो दे मतलब कि वो यंगर ब्रदर जो है, उन्होंने मम्मी को बताया, मतलब कि उनके जो एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने छोटे ब्रदर को पैट किया। वाओ! उस इंसान का नाम मतलब कि अंश ही है, आई एम सॉरी बट। तो पैटेड की अंश वेरी मतलब कि स्मार्ट, यू गॉट अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट। मतलब बड़े भैया का कुछ काम था, तो छोटे भैया ने हेल्प कर दी। बड़े भैया को कुछ कार वार खरीदना था, इनका कार डीलिंग का बिजनेस है, तो उन्होंने छोटे भैया ने हेल्प कर दी। तो बड़े ब्रदर ने खुश होकर पैट किया, वाओ अंश, यू हैव डन वेल। उनका नाम अंश ही है। बहुत अच्छा लगा। बट छोटे ब्रदर को क्या लगा? वाह अंश वाह, तूने कर दिया। मतलब क्योंकि वो डिस्ट्रस्ट था, वो डिस्ट्रस्ट था। बिकॉज बोथ ऑफ द ब्रदर्स एक्चुअली आर नॉट इन गुड टर्म्स। एक्चुअली दोनों ब्रदर्स ऊपर नीचे रहते हैं, दोनों अच्छे टर्म्स में नहीं है। ओवरऑल छोटे ब्रदर ने एज अ बिजनेस बड़े भाई को हेल्प कर दिया, और बड़े भाई ने खुश होकर अपने छोटे भाई को बोला। लेकिन छोटे भाई ने उसको कैसे लिया? वाह अच्छा, तुम्हारे इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए। नाउ दिस इज डिस्ट्रस्ट। when we have that what we call as prejudice, हम किसी को जजमेंटल हो जाते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसी बात आ जाती है, एंड वी मे नॉट बिलीव इन ईच अदर। चाहे वो सही तरीके से भी बोलेगा, हम उसको गलत लेते हैं। अब बॉस सेट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, उसने पॉजिटिव टोन में बोला, एम्प्लॉय ने उसे नेगेटिव टोन में समझा। दिस इज डिस्ट्रस्ट। तो अंडर द साइकोलॉजी, यानी कि जहां हमारा दिमाग खुद ही मतलब कि सोचता है, वहां आपका डिस्ट्रस्ट, पुअर रिटेंशन और लॉस बाय ट्रांसमिशन, मतलब वहां से ऊपर से नीचे आते आते इतना सा बच गया। और लैक ऑफ अटेंशन बिकॉज ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, becoming again judgmental, these are psychological barriers। क्योंकि इसमें आपने अपने दिमाग में वो चीज सोची है, अपने दिमाग में सोची है। आई अगेन रिपीट, द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि द फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, आपके कंपनी में ओपननेस नहीं है, आपके कंपनी के लीडर्स या फिर जो आपके बॉस हैं, दे आर नॉट सपोर्टिव, डेफिनेटली that would not have a free communication. If the organizational policy, explicit or implicit, is not supportive to free flow of communication, it may hamper effectiveness of communications. भाई बॉस को बोल रखा कि आप ज्यादा नीचे तक नहीं बताओगे। In an organization with highly centralized pattern, people may not be encouraged to have free communication. अगर बॉस के पास ये मैसेज पहुंचा हुआ है that these communications or these things should not be told to the lower level, तो बॉस आपको उतना ही बताएगा। एंड उसमें क्या होगा, मे बी वो जो बताना चाहता था वो भी नहीं बता पा रहा है। मे बी ही वॉन्टेड टू एड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है, इट इज गोइंग इन लॉस, राइट नाउ। द मतलब की कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, दे डोंट वांट द एम्प्लॉयज टू नो दिस। उनको डर है कि भाई एम्प्लॉयज नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। नाउ दे ऑल्सो वांट कि एम्प्लॉयज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करें। ऐसे में क्या होता बच्चा,
बेसिकली एक रियलिटी सेंस में यू शुड बी इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉइज एज अ फैमिली. लेकिन अगर आपने उनको फैमिली की तरह ना इन्वॉल्व करके आपने उनको ये बोला कि ठीक है आपको काम करना है, नाउ द एम्प्लॉइज मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द मेन मोटिव बिहाइंड दैट, and that may hamper the complete work. Second, rigid rules and regulations. Rigid rules and cumbersome matlab very difficult procedures may be a hurdle to communication. For example, अगर हम लोग किसी भी चीज को स्केलर चेन में लेकर चलते हैं and the company's rule is you cannot break this scalar chain, what will happen? If the communication is going through the prescribed channel, it may result in delays. कभी कभी आपका जो एम्प्लॉई है उसको किसी इमरजेंसी में कोई जल्दी डिसीजन लेना है, लेकिन कंपनी का रूल कहता है नो, नॉट एट ऑल. चाहे इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, यू हैव टू फॉलो द चैनल. देन व्हाट विल हैपन? The communication will be definitely delayed, the work will be delayed, and it may even result in some loss. Yes, we need to follow the scalar chain. हमें scalar chain follow करना होता है. But that is why under the scalar chain also we have the what you call as, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है what we call as gangplank. वो इसीलिए तो दिया है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो then there should be a free flow. But there are companies where they may not be allowing, and this becomes what you call as, sometimes it may result in lots of loss. Status, this is when the superior मतलब जो बॉस है वो एक डिस्टेंस बना ले अपने सबॉर्डिनेट के बाद. he may be a conscious person, he may not allow his subordinates to express their feelings freely. मतलब वो होता है ना खौफ. स्टेटस सिंबल, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस. और हर कंपनी में आपको एक ऐसा बॉस तो दिखाई देगा ही देगा जिसको देखकर आपके पसीने छूटेंगे. And now what happens? Even something which has to be done in a, मतलब कोई चीज अर्जेंसी में करनी है या कोई इनिशिएटिव करना है या फिर यही बताना है कि भाई आग लग गई है, लेकिन बॉस कहता है आई एम द बॉस, तो व्हाट विल हैपन? कम्युनिकेशन विल नॉट बी देयर. कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स कई बार हमारे कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है, यू हैव अ टॉल वन, और किसी किसी में क्या होता है, यू हैव शॉर्टर. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मान लो कि एक शॉर्ट है, यानी कि द नंबर ऑफ मैनेजर्स आर मोर, तो नेचुरल है कि ये तो हमें भी पता है कि हमेशा चीजें फिल्टर होती है, या तो वो ऐड होती है या वो फिल्टर होती है. तो ऊपर से नीचे आने तक हो सकता है कि दैट द कम्युनिकेशन मे नॉट रीच द सेम वे एज इट वाज टोल्ड. और यहां सिर्फ 3 लेवल है तो मे बी देयर इज फ्रीडम. इन सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है नंबर ऑफ मैनेजर्स. कई बार क्या होता है, जो रूटिंग होती है, रूटिंग का मतलब होता है, मैं बताती हूँ आपको. आपको छुट्टी लेनी है, यू हैव अ वेरी यू हैव द मैरिज, आपके घर में किसी की शादी है, आपको छुट्टी लेनी है. नेचुरल है कि आपको लंबी छुट्टी लेनी है. छोटी छुट्टी लेनी है, आप अपने बॉस को बोलकर छुट्टी ले सकते हो. बट नाउ यू वांट टू गो फॉर अ 15 days हॉलीडे और अ वेकेशन, और उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर व्हाट यू कॉल एज एप्लीकेशन.
you need a proper verification, and you also need a proper permission. अब कई जगहों पे क्या होता है, स्पेसिफिकली इन द इंडियन PSUs, आपका जो डिपार्टमेंट है वो ये है, HR डिपार्टमेंट आपका या फिर जो भी पर्सोनल डिपार्टमेंट है वो ये है. नाउ फॉर अ लॉन्ग लीव नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप मान लो इस लेवल पर काम करते हो, मतलब यू आर इन द LDC लेवल, देन आपको जो है इस बारे में भेजना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू द UDC फाइल, फिर यहां से जाएगी आपके मतलब कि हेड के पास, फिर वो जाएगी आपके जो हेड का हेड होगा वहां पर, उसके बाद वो फाइल वहां से निकल के जाएगी पर्सोनल के पास. अब पर्सोनल के पास भी वो ऐसे नहीं जाएगी, वो यहाँ पर जाएगी, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से परमिशन होगा, फिर ये वापस आएगा. दिस मच कॉम्प्लेक्सिटी. एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि कल जाना है और आज जाकर परमिशन मिलती है. हैपेंस, बहुत बार होता है. तो दिस इज वेयर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम्स, जहां पर आपके नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा हो जाते. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज पेपर में बहुत बार आता ही, मतलब if facilities for smooth, clear, timely communications are not provided, communications may be hampered. Facilities like frequent meetings, suggestion box, complaint box, social and cultural gathering, transparency in operations will encourage free flow. अगर आपकी कंपनी में ऐसा सेटअप है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सेटअप है जहां आपके पास फ्री मतलब every 3 months normally in most of the companies we have the review meeting. If the company has gone in profit, they even provide with a dinner or something. अब मतलब एक face to face interactions. In some companies they even have the suggestion meetings and suggestion box also. उसमें क्या होता है, अगर आप सामने आकर नहीं भी बता सकते हो, आप अनोनिमसली या फिर जब ऐसी मीटिंग्स होती है तो एक जनरलाइज में बता सकते हो. अब पर्सनली जाके बॉस के दरवाजे को खटखटाकर किसी की शिकायत लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है. सो इफ द कंपनी इज हैविंग सच फैसिलिटीज और मतलब कम्युनिकेशन इजी फ्लो होता है. नहीं है तो कई बार एम्प्लॉयज को परेशानी हो रही होगी. सम इम्पोर्टेंट टास्क में बी स्टक, वो अपने मैनेजर के बारे में कुछ बताना चाहते होंगे बट दैट मे नॉट बी कमिंग आउट. दे मे बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द मटीरियल, इन द मशीनरी, इन द सिस्टम, बट दे मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट. तो दैट इज, यानी कि बच्चा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप लोगों को वहां लिखना है जहां द वर्ड हिंट इज द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरफ से ये फैसिलिटीज नहीं है. और वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है? द वेरी फर्स्ट इज द पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सुपीरियर का स्टेटस सिंबल, रूटिंग ऑफ द प्रोसीजर या फिर फैसिलिटीज, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल. नाउ कम्स पर्सनल. एज आई सेड, personal is often confused with psychological because it's very near the personal factors of both sender and receiver may exert influence on effective communication. Some of the personal barriers of superiors and subordinates: fear of challenge to authority. भाई अपनी नौकरी सबको प्यारी होती है. टाइगर किंग सबने पढ़ा होगा, आई नो. टाइगर किंग के अंदर जो दीवान था या फिर उनके जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, दे नेवर स्पोक अगेंस्ट द किंग, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी थी. If a superior perceives that a particular communication may adversely affect his authority, he may withhold. या if a subordinate feels कि I may, मतलब मैं इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन करूंगा
तो मेरा जो बॉस है, ही मे नॉट बी लाइकिंग दैट, वो दोनों दोनों मतलब अगर एक सुपीरियर को लगता है कि भाई मैंने आई शुड नॉट स्पीक दीज वर्ड्स टू माय सबऑर्डिनेट्स, उसको ऐसा लगेगा कि उसकी अथॉरिटी जो है वो कम हो रही है. दिस इज वेरी नियर टू स्टेटस, बट इट इज नॉट. दिस अ फियर, उसको डर लग रहा है. lack of confidence of superior on his subordinates. Sometimes the boss may not be feeling competent about their subordinates. Unwillingness to communicate. Sometimes the subordinates may not be prepared to communicate to their with their superiors. उनको डर लग रहा होगा. या lack of proper incentives. मतलब मेरे कहने से भी कोई फायदा नहीं है. I'm not going to get any reward. Why should I offer my suggestion? Why should I tell this is wrong? मतलब ये उसने अपने पर्सनल है. This is not his mind. This is his personal feelings. It's not his mind. It is his heart which is working. वो दिमाग था, ये दिल है. तो this may result in hampering. Now, how can we have effective communication? Right now, before I was starting your class, my last year student who is now in a DAV PG in Chandigarh was telling me that they have a specific program on communication skills. In fact, last year की जो topper girl थी, even though now she is in Ramanujam, she had actually taken admission in Christ. तो उसने मुझे बताया कि वहां क्राइस्ट के अंदर, इन द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, दे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका पहला जो मतलब कि ओरिएंटेशन है, दैट इज इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स. Anywhere, whether you are a student, you are a teacher, you are working somewhere, अगर ये बैरियर्स हमारे पास हैं, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो, पर्सनल बैरियर्स हो, या फिर कुछ और, डेफिनेटली हमारा जो हम कहना चाहते हैं या जो हम दूसरे से पूछना चाहते हैं, दैट वुड नॉट बी एबल टू. एंड इन अ कंपनी जब हम डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमने 4 एलिमेंट्स पढ़े थे. द फर्स्ट वाज सुपरविजन, यानी कि जो सुपीरियर है, he needs to observe his subordinates. सेकेंड हमने पढ़ा था मोटिवेशन. मैनेजर एज वेल एज कंपनी के अंदर ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि जो काम करते हैं दे रिसीव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. थर्ड हमने पढ़ा था दैट एज अ बॉस वी नीड टू अडॉप्ट सम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. और उसके अंदर हमने पढ़ा था बच्चा कि अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव और लेजर. और चौथा हमारा है और वो है कम्युनिकेशन. एंड व्हेन वी आर गिविंग द डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमारे पास ये चारों एलिमेंट का होना जरूरी है. अ गुड डायरेक्शन इज where there is supervision, where there is motivation, where there is leadership as well as effective communication. चाहे वो कंपनी की पॉलिसी हो या वो मैनेजरियल हो, ये चारों चीजें जब होंगी तो डायरेक्शन, आपका डायरेक्टिंग इज सेट टू बी इफेक्टिव. और उसके लिए वी नीड टू रिमूव दोस ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. तो कैसे हम करते हैं दीज कम्युनिकेशन बैरियर्स?
The barriers to effective communication exist in all the organization to a greater or lesser degree. Organizations keen on developing effective communication should adopt suitable measures to overcome the barriers and improve communication effectively. Now, what will be the question in this? आपके पेपर के अंदर अगर हम देखें बैरियर्स, वो आपके आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब कि किस कैटेगरी में है वो भी बताना है. यानी कि फियर ऑफ चैलेंज अंडर पर्सनल बैरियर. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, ऑल्सो एक्सप्लेन द मेजर्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली. तो आपको इसमें सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद करना पड़ता है. एंड एज अ पार्ट आई वुड से कि लर्न 6, मैक्स टू मैक्स आपके 6 आते, मैक्स टू मैक्स. मतलब एक बार क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एनी 6 मेजर्स टू फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक बार. तो आप इनमें से कोई 6 को अच्छे से लर्न कर लीजिए बस. इसमें आपको यही करना है. In the barriers you need to identify, but here you don't need to. First, clarify the ideas before communicating. When a manager is communicating a problem, definitely it should be clear in all perspective to the executive himself. भाई मैं आपको पढ़ा रही हूं, उससे पहले मुझे खुद पता होना चाहिए. The depth analyze in such a manner कि आप properly communicate कर रहे हो. If I am giving you half baked knowledge, then आप उसको और 25% कम करोगे. So it is very, very important for a manager to himself go through the ideas clearly. Communicate according to the needs of the receiver. ये आपको मैंने अभी जब मैंने आपको उस दिन टेक्निकल जार्गन बताया था, तो आई गेव यू वन एग्जांपल कि इफ यू गो टू अ डॉक्टर एंड ही सेज यू हैव COLD, तो आप उसको मतलब कि डेफिनेटली यू विल बी परसीविंग इट इन अ रॉन्ग मैनर. Managers should adjust his communication according to the education and understanding levels of the subordinates. See, definitely if you are communicating to a doctor, your level might be something else. If you are communicating to a worker, आप घर के अंदर मेड सर्वेंट से वो बात नहीं कर सकते हो ना जो आप अपने बराबर के लोग से कर सकते हो. that's a difference. So you need to understand कि आप किस लेवल पर बात कर रहे हो. Consult before others before communicating. Means if you are going to communicate something very important, so it is always good that you take the participation of your subordinates. You can take their suggestions. आप उनको involve कर सकते हो. That would help. Maybe they give you a better. कभी कभी क्या होता है कि when 10 brains are working, you may get a better result. Be aware of language, tone, and content of manner. The contents, tone, language used, manner in which the message is to be communicated are the important aspects. The language used should be understandable to the receiver and should not offend the sentiments of listener. ताने मारकर बात करना. The message should be stimulating to evoke response from the listener, ना कि उसके दिमाग में organizational barrier बन जाए. Means you have to be somewhat generous. Convey things to help and value to listener. इधर उधर की बातें नहीं. If there is something which is interesting, अगर उनका काम है, उनके टीम से रिलेटेड है, उनके इंटरेस्ट या उनके नीड से रिलेटेड है, then it is good.
While conveying, it is better to know the interest and needs of people with whom you are communicating. कभी कभी लोगों को ना बातचीत करते हुए कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, कभी कभी लोगों को लगता है इट इज बेटर टू कीप अ बिल्कुल टू द पॉइंट रखो. You need to understand that. Ensure proper feedback. This is one of the very important aspect even in the real sense. The communicator may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. The receiver may also be encouraged to respond to communication. The communication process may be improved by feedback received. See, what happens is, normally what happens is, when it is an interaction, तो मजा आता है, बहुत मजा आता है. If I'm speaking and the others are also giving me some response, उसमें what happens is you understand that the person on the other side is also able to comprehend you. और बीच बीच में जब आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो या फिर उनसे सजेशंस देते हो, तो दैट हेल्प्स यू टू एंश्योर कि एवरीबॉडी इज एबल टू लिसन टू यू. Communicate for present as well as future. Generally, communication is needed to meet the existing commitments to maintain consistency, and it should also be aimed at future goals of enterprise. मतलब आगे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके आपको ऐसा प्लान बनाना चाहिए. Some communications definitely will be only for the present. But अगर हम एक generalized communication करते हैं, like if we are setting up the rules and regulations, तो rules and regulations हमेशा चलता है. But there are certain areas जहां हमें सिर्फ एक particular program पे काम कर रहे हैं, तो maybe that is only for this present. So you need to understand आपका situation क्या है. Follow up. Review meetings ले लो. Suggestion box रख लो. If maybe the people are not able to speak to you, at least they would be able to anonymously tell about the problems. Last but not the least, which is not actually practiced by the managers, is be a good listener. जब हम बोलते हैं ना ऊपर status, most of the time the managers do not listen. एक अच्छा लीडर वो है जो बोलता भी है, लेकिन एक बढ़िया लीडर वो है जो सुनता भी है. As in our management we say, मतलब एक की थियोरी है हमारी, God has given us one mouth and two ears, so we need to listen. Patient and attentive listening solves half of the problems. आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी दुनिया की तभी हो जाएंगी ना जब हम लोग मतलब कि दूसरों के बारे में बात करने से पहले दूसरों से बात कर ले. Managers should also give indications of their interest in listening to their subordinates. मतलब अब subordinates natural है कि उनके पास ये वाले barriers होते हैं. उनको डर लगता है कि भाई मैं जाकर अपने बॉस को ये बात कहूंगा तो हो सकता है वो मुझे चमचा कहे, वो मुझे जो है गलत तरीके से ले ले, हो सकता है अगले साल मेरा ही प्रमोशन रुकवा दे. ऐसे डर तो हमेशा रहता है. बिकॉज इन एन एंटरप्राइज व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव टू फेस सो मच ऑफ पॉलिटिक्स. लेकिन अगर एक अच्छा मैनेजर अच्छा कम्युनिकेटर है, नाउ एज आई स्टार्टेड विद दिस वर्ड कि कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे. कम्युनिकेशन कभी भी आपका सिंगल वे नहीं रहता, इट इज ऑलवेज टू वे. तो अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को जो है ये बताते हो कि आई एम रेडी टू लिसन एंड आई एम नॉट लिसनिंग. एक होता है सिर्फ हेयर करना, इधर से सुना और इधर छोड़ दिया, और दूसरा होता है प्रॉपर लिसनिंग. तो मैं आपकी बात को ध्यान कर रहा हूं, आई एम कीपिंग इट इन कॉन्फिडेंस. देन आपका जो सबॉर्डिनेट होगा वो आपके ऊपर जो है ट्रस्ट करेगा.
And when there is mutual trust, then definitely any communication which takes place will always be there. हमने ऑर्गेनाइजिंग में एक वो पढ़ा था कि सबसे पहले हम काम को मतलब कि डिवाइड करते हैं एंड फिर हम उसको डिपार्टमेंट डालते हैं, उसका एक हेड डालते हैं, उसके नीचे कौन काम करता है, उसकी अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को करते हैं. तो ये डिपार्टमेंट तभी काम करेगा जब ये जो हेड है उसके नीचे काम करने वाले एज वेल एज जो हेड है उसके अंदर डायरेक्शन के सारे पावर्स हैं. व्हाई इट हैपेंस कि एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज इन दैट डिपार्टमेंट द डायरेक्टिंग माइट नॉट बी देयर. दैट मीन्स अ गुड सुपरविजन, a good motivation, a good leadership, as well as what we call, last but not the least, is a good communication. तो जब ये सारी चीजें हमारी होती हैं तो ही आपका जो डायरेक्शन है विच इज अ मैनेजरियल फंक्शन which is designed to encourage subordinates to work effectively, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन, सेकेंड एलिमेंट मोटिवेशन, थर्ड एलिमेंट लीडरशिप एंड फोर्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन. इसके अंदर से जो आपका सुपरविजन है एंड सम ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर्स आपके मैनेजरियल होते हैं और सम ऑफ द मोटिवेशंस आर पॉलिसी ऑफ द कंपनी. लाइक कंपनी में सैलरी, बोनस, पेंशन वगैरह होता है, लेकिन बॉस अपने लेवल पर जो है ही मे बी गिविंग सर्टेन इंसेंटिव्स और ही मे बी मोटिवेटिंग हिज सबऑर्डिनेट्स विद ड्यू रिकॉग्निशन. And communication is the process of exchange where what you are telling, to whom you are telling, by what channel you are telling, रिसीवर ने उसको कैसे लिया है, उसने उसको क्या, उसका जैसे मैंने अभी आपको जो ये एग्जांपल बताया था, दिस ओनली हैपन टुडे ओनली, दैट बड़े ब्रदर ने बोला वाओ यू हैव डन इट, छोटे ने लिया वाह अच्छा तुमने कर लिया. तो दिस इज वेयर द डिकोडिंग टेक्स प्लेस. एंड डेफिनेटली अगर हमारा डिकोडिंग गलत है तो हमारा फीडबैक भी रॉन्ग होता है. एंड देन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बोथ फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस जिसके अंदर आपके होते हैं ऑर्डर्स यानी कि आप जो ऑर्डर दे रहे हो, मेमोस. नाउ व्हाट आर मेमोस? कई बार आपका जो सबऑर्डिनेट है वो काम नहीं कर रहा है. मेमो एक नेगेटिव कम्युनिकेशन होता है क्लास 12, मतलब आपको लग रहा है आपका टीम जो है टाइम से नहीं आ रहा है, दे आर कमिंग लेट. तो आप एक मेमो इश्यू करते हो. द मेमो कैन बी फॉर द एंटायर टीम, इट कैन बी टू एन इंडिविजुअल. It has been found that you have been late on several occasions. This is a warning, या कि this is the first warning, or else disciplinary action would be initiated against you. इसको हम मेमो बोलते हैं. अपील्स, जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो. नोट्स, जनरल आपके मीटिंग्स हैं उनको आप सर्कुलेट करते हो. मीटिंग हुई, एक आदमी को बोला गया कि यू मतलब कि यू हैव टू नोट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, या कोई नोट्स है उसको करना है, एंड देन इट इज गिवन टू ऑल. सर्कुलर, जैसे कल सर्कुलर निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 8 से लेकर 10 तारीख तक स्कूल छुट्टियां हैं. वो अलग बात है कि 9 तारीख इज सेकेंड सैटरडे एंड 10th इज संडे, लेकिन वो सर्कुलर है. और जब स्कूल से ये सर्कुलर इश्यू होता है, this is to be notified to all the students that the school will remain closed on the occasion of G70. वो आपका सर्कुलर. एजेंडा, किसी भी मीटिंग का जो मेन मुद्दा होता है. Today at 6 p.m. we are having a meeting and the agenda is to discuss the recent profit earned by the company. तो एजेंडा, मुद्दा, मेन मुद्दा. अपार्ट फ्रॉम
Formal, we also have the informal or grapevine communication, which is generally in the form of rumors or whispers. They are there might be unofficial, spontaneous, unrecorded, distorted, मतलब छेड़छाड़ किया हुआ. A manager should learn to manage with informal communications also. And there might be some barriers which are semantic, यानी कि language, organizational, यानी कि certain policies. Maybe you are living in some area where the language is different. Transmission, आपने क्या बोला और क्या समझ आया, psychological and personal. And managers must take appropriate measures to overcome these barriers to promote effective communication in the organization. क्योंकि जब ये चारों चीजें साथ में चलती हैं तो directing is said to be one of the best. These are some of the questions which you can expect अंडर. जैसे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है स्टेट इट्स कैटेगरी एंड नेम मोर टू इंसेंटिव्स. देन यहाँ पर है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द वे अथॉरिटी बीइंग यूज्ड बाय द मैनेजर. एंड थर्ड इसके अंदर है व्हाट सिस्टम डू यू थिंक मैनेजर शुड अडॉप्ट टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. So these are the questions which you can expect. So this is the entire chapter what we call as directing.